All of you, please concentrate on the class. Those who didn't receive the sheet, it's okay. So yes, ma'am, it's over to you. Okay, so we'll begin with the first question of the sheet. And the first question was this. Suppose the head is the reference to the first node of a singly linked list. What is the complexity of printing the kth element from the middle in the given linked list? So suppose if I have, let's say, 5 nodes in a linked list, and from the middle, that is this one, I want to print some kth node, right? Maybe the first, that means it will be fourth, the second means it will be fifth. So first of all, to go to the middle, you will require big O of n time complexity. Then from here, you will have to go k times forward. So you can say order of k, and then you can add it. So your total time complexity will be order of n plus k, which can be written as big O of n, because k will be some numeric constant value, right? So the answer is option A for this one. If at all n plus k was given as one of the options, you will have to mark n plus k as the correct answer. So is it clear to everyone? Let's move to the next one then. Right, yes or no, if it is clear to everyone. In case of any doubt, you can write your doubt in the chat box. Yes, ma'am, it's clear. But how we will know that which one is the middle? Ma'am, there is a question from one student, then how we will know that which one is the middle element? Okay, so to find the middle element of a linked list, there are many algorithms. See, the first thing is you can put a while loop and go from the first till the last and count the number of nodes. Take a counter and do c is equal to c plus 1 every time. The next time, put this c is equal to c by 2. इसकी वैल्यू को हाफ कर दो and then half time start from the beginning, so you will reach to the middle. This is the most basic approach for doing or finding the middle element. Another approach is you take 2 pointers. One is a slow pointer, the other is a fast pointer, right? And what you do is every time you are moving in the loop, you increment slow by 1 and fast by 2. So the next time slow will come over here and fast will be incremented by 2 times, so fast will come over here, right? And you keep on doing this, so slow will come over here the third time, and fast will go 2 steps ahead. So fast will be equal to none, because 5 के बाद 6 तो है नहीं, तो fast आपका none हो जाएगा. जैसे ही आपका fast none हो जाता है, आप लूप से बाहर आ जाइए, तो जो स्लो वाला पॉइंटर है वो आपका मिडिल पे पॉइंट कर रहा होगा. मतलब अगर आप ऐसे समझो कि एक देयर इज अ मैन whose step size is 5 feet or let's say 6 feet, and there is a child whose step size is 3 feet, उसका जस्ट आधा. या अगर आप इसको बोलो ये एक बार में 2 फीट चलता है, ये एक बार में 1 फीट चलता है, तो ये जस्ट इसका आधा चल रहा होगा. अगर आप इनको बोलोगे कि 4 कदम लो, अगर 4 कदम लिया तो ये 8 फीट चल चुका होगा, बट ये 4 ही चला होगा, which is exactly the half. This is only being employed over here. So this is how you find out the middle of an linked list, right? So we'll move to the next one now. The next question was this. So what does the code do for a singly linked list of n nodes? Because we cannot draw n nodes, we are going to draw only a few nodes over here. So let's say I draw 10. I'll draw it a little lower. 10, 20, 30, 40, and 50. And this is the last node, so I will write none over here. ये मेरा first node है, so this will be the head reference. So what they are saying is, first of all, current node 1 is equal to head. So I have a C1, which is basically current node 1, referring to the head. Now there is a loop. जब तक current node 1 none नहीं हो जाता या उसके last में, that means if it is the last node, जैसे उसके next field में none नहीं हो जाता, आप loop में चलते रहिए. Right now current node is not none because वो value जो नोड में 10 है उस नोड को रेफर कर रहा है. इसकी नेक्स्ट फील्ड में क्या होगा? नेक्स्ट फील्ड में 20 वाली नोड का एड्रेस होगा, तो वो भी नन नहीं है. तो इस केस में हम लूप के अंदर जाएंगे. आप जब लूप के अंदर जाओगे तो आपको ये स्टेटमेंट मिलेगा, करंट नोड 2 इज इक्वल टू करंट नोड 1 डॉट नेक्स्ट. तो आपका C2 इधर आ जाएगा. आफ्टर दैट यू सी दैट देयर आर 3 स्टेटमेंट्स रिटन. These 3 statements are basically swapping statements. जब भी हम temp कोई वैल्यू ले रहे हैं,
सो टेम्प इज इक्वल टू करंट नोड 1 का की विच इज 10. फिर करंट नोड 1 के की में आप 2 का की स्टोर कर दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर पुटिंग 20 ओवर हियर. एंड देन करंट नोड 2 के की में आप टेम्प को स्टोर कर रहे हो, दैट मीन्स 10 ओवर हियर. सो दिस इज बेसिकली स्वैपिंग. पाइथन में स्वैपिंग ऐसे भी लिखी आपको मिल सकती है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट इन पाइथन. a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a, ये भी स्वैपिंग हो जाती है. यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, स्वैपिंग हो रही है. स्वैप करने के बाद लास्ट स्टेटमेंट ने बोला C1 इज इक्वल टू C2 का नेक्स्ट. C2 का नेक्स्ट कौन सा है, C2 का नेक्स्ट है ये वाला नोड, और C1 को हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट करना है. अब होता क्या है कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आप जल्दी जल्दी में, क्योंकि आप पास टाइम लिमिट होती है, आप ये देखना भूल जाओगे करंट नोड 2 का नेक्स्ट. आप करंट नोड 1 को करंट नोड 1 के नेक्स्ट में इंक्रीमेंट करके यहां ले आओगे, which is going to be wrong. So reading the code also requires precision. So C1 आपका यहाँ पर आ गया. अब जब C1 आपका यहाँ आ गया, दोबारा लूप चला, क्या C1 नन है? नन नहीं है. इसके नेक्स्ट में भी नन नहीं है. तो फिर से क्या होगा, फिर से ये स्वैपिंग होगी. स्वैपिंग के पहले आपका C2 इंक्रीमेंट होगा. C2 कहाँ आएगा, C1 के नेक्स्ट में. So now C2 is over here. Again they will do swapping because temp will be equal to 30, and here swapping will happen. 40 will come over here, 30 will come over here. Again C1 will increment using this line and C1 will come over here. अब चेक होगा लूप में क्या C1 नन है, तो ये तो नन नहीं है, so this is true. C1 के नेक्स्ट में नन है, yes C1 के नेक्स्ट में नन है, so this is going to be false. आप लूप के बाहर आ जाओगे. हुआ क्या, बेसिकली ये दोनों वैल्यू स्वैप हुई और ये दोनों वैल्यू स्वैप हुई. तो बेसिकली हमारा क्या हुआ, स्वैपिंग ऑफ द कीज ऑफ द एडजेसेंट नोड. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. शुड वी मूव टू द नेक्स्ट वन? This question is clear to everyone. Kindly reply. Yes, ma'am, it's clear. Okay, so we'll move to this one. Now this question, if you see at once, it looks something like a computer organization question because you have these values over here, but basically it's a linked list question. ये कहना क्या चाह रहा है, ये देखो. Suppose you have a doubly circular linked list. So it is a doubly circular linked list with key values given like this. What will be the following sequence of statements print if OPR refers to the head node? That means OPR आपका ये होगा, and QCR refers to the last node. That means QCR आपका ये वाला node होगा. So if I'm going to just quickly make this diagram, so ACK add increment का INCR, out MUL, DIV, DECR, and then you have, let's make a little place over here, DECR, and then you have SUB. तो फॉरवर्ड लिंक्स है हमारे पास. एंड बिकॉज इट इज डबली सर्क्यूलर, तो बैकवर्ड लिंक्स भी होंगे, सर्क्यूलर मैनर में ही होंगे. So what you have to do is basically put a pointer OPR and QCR. So we are going to put OPR over here and last node है आपका QCR, वो यहाँ पर आ गया. So the first print statement, आपको क्या प्रिंट करना है, OPR के आगे कितने नेक्स्ट लगे हुए हैं, 1 2 3 4 नेक्स्ट लगे हुए हैं. तो OPR से हमें 4 पहले तो इंक्रीमेंट करने हैं. तो पहला इंक्रीमेंट करोगे आप यहाँ आओगे, दूसरे पे यहाँ, तीसरे पे यहाँ, और चौथे पे आप यहाँ आओगे. जब आप यहाँ आओगे उसके बाद लिखा है डॉट की, तो इस वाले की क्या है, MUL. तो पहले तो आपके आउटपुट में आ गया MUL. इससे क्या हुआ, ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अब आपको प्रिंट करना है OPR डॉट प्रीवियस, प्रीवियस एंड प्रीवियस. तो 3 टाइम प्रीवियस लगा हुआ है. प्रीवियस के केस में हम उल्टा जाएंगे. तो OPR डॉट प्रीवियस जब आप करोगे, दैट मीन्स व्हाट यू विल डू इज OPR से पीछे जाओगे. सो फर्स्ट टाइम यू विल कम ओवर हियर, सेकेंड टाइम यू विल कम ओवर हियर, एंड थर्ड टाइम यू विल कम ओवर हियर. इसके बाद आपको क्या चाहिए, उसकी की. जब उसकी की आपके पास आ जाएगी, वो क्या है, DIV. सो द सेकेंड वन विल बी DIV. इस केस में ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो गया. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट,
अब आपको क्या चाहिए, अब आपको QCR से प्रिंटिंग करनी है। QCR से प्रिंटिंग करने में लिखा हुआ है डॉट नेक्स्ट एंड डॉट नेक्स्ट, दैट इज 3 टाइम्स डॉट नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो 3 टाइम्स में हमें QCR से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। QCR हमारा यहाँ पर है SUB पे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब आप मूव करोगे आप यहाँ आ जाओगे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम यहाँ आ जाओगे और थर्ड टाइम आप यहाँ आ जाओगे। तो आपकी की वैल्यू क्या है, INCR। तो इस केस में आपका ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए गलत हो गया। एंड बेसिकली इतना कोड लिखा भी था, बट फ्रॉम हियर टिल हियर यू डिड नॉट हैव टू यूज द कोड। सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स आपने एग्जीक्यूट किया और आपको आंसर मिल गया, राइट? इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव। Right, yes or no, clear? Yes, ma'am, it's clear. Okay, so the next one, what does the code do for a singly linked list of n nodes? यहाँ पर एक कोड गिवन है और ये रिकर्सिव कोड है। यहाँ पर आपको एक रिकर्सिव लाइन दिख रही है, तो यहाँ हमें रिकर्शन की तरह इसको एग्जीक्यूट करना है। सो लेट्स जस्ट नंबर दीज स्टेटमेंट्स 1 2, so this is the third block, so I'll write the numbering inside this only, third and fourth, right? तो सबसे पहले लेट्स से हमने एक एग्जांपल ले लिया है एंड वी टेक अ लिंक लिस्ट ऑफ 3 nodes, which is 10, 20 and 30. This is your head and let's just take one node also 40 and इसके next में है आपका none. अब आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया, जब आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया तो आपने हेड पास किया। हेड पास करते टाइम ये वाली नोड आपकी पास हुई जिसमें वैल्यू क्या थी 10। तो मैं नोड में जो वैल्यू है उससे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए लिख रही हूँ कि अभी 10 वाली नोड हमारी पास हुई है। जब ये 10 वाली नोड पास हुई, द फर्स्ट स्टेटमेंट current node is equal to head. So current node में क्या आ गया, C is equal to head. That means वो node जिसके पास value है 10. Second statement, current node double equal to none. If current node double equal to none, क्या current node none है? नहीं। करंट नोड के नेक्स्ट में नन है? नहीं। ये कंडीशन जो इफ वाली है ये कहाँ ट्रू होगी, जब करंट नोड आपका कहाँ आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके नेक्स्ट में क्या है, नन है। तो अभी ये कंडीशन ट्रू नहीं है। आगे बढ़ो, एल्स पार्ट में आ जाओगे। एल्स पार्ट में थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एक और फंक्शन कॉल आप करो उसके नेक्स्ट के लिए। तो यहां से एक और फंक्शन कॉल गई इस करंट नोड के नेक्स्ट के लिए, दैट मीन्स 20 वाले नोड के लिए। यहां पर भी फर्स्ट स्टेटमेंट ने बोला C इज इक्वल टू हेड। अब करंटली हेड की वैल्यू क्या है, करंटली हेड वैल्यू ये है, तो यहां पर भी 20 वाली नोड को रेफर करने लगा। इफ स्टेटमेंट अभी भी फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट में फिर से एक कॉल हुई फंक्शन 30 के लिए। जब 30 के लिए कॉल हुई तब इसने फर्स्ट स्टेटमेंट बोला C इज इक्वल टू, जो अभी हमारा हेड है, अभी हमारा हेड है ये वाली नोड, तो C इज इक्वल टू 30 वाली नोड। सेकेंड स्टेटमेंट इफ कंडीशन अभी भी फॉल्स है, क्योंकि ना तो ये नन है और ना ही इसके नेक्स्ट में नन है। थर्ड स्टेटमेंट अगेन एक फंक्शन कॉल होगी फॉर करंट नोड डॉट नेक्स्ट, दैट इज 40 नोड। फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड इट करंट नोड इज इक्वल टू हेड। हमारा हेड क्या है अभी करंटली 40 है, तो करंट नोड इक्वल टू 40। सेकेंड स्टेटमेंट, क्या ये नन है, 40 वाला नोड नन नहीं है, C इज नॉट इक्वल टू नन। क्या इसके नेक्स्ट में नन है, यस, इसके नेक्स्ट में यहाँ पर नन है, तो यहाँ ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आपको क्या करना पड़ा, इसके अंदर जाके आपने सिंपली बोल दिया रिटर्न। सो फ्रॉम हियर यू रिटर्न टू द पेरेंट कॉल। पेरेंट कॉल में आपने जाके देखा फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए थे, बट एक फोर्थ स्टेटमेंट बकाया था। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है प्रिंट कर दो करंट नोड की की को। करंट नोड की अगर आपको प्रिंट करना है, यहाँ पे करंट नोड की क्या है 30, तो यहां से आपका 30 प्रिंट होके आ गया। इसके बाद यहां से भी फंक्शन कॉल अपने पेरेंट के पास गया, यहां पर भी आपका एक फोर्थ स्टेटमेंट बकाया था। फोर्थ स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा 20, क्योंकि करंट नोड की वैल्यू क्या है 20। उसके बाद आप वापस गए अपने पेरेंट कॉल में, यहां पर भी एक फोर्थ स्टेटमेंट बकाया था जो क्या प्रिंट करेगा 10, क्योंकि करंट नोड 10 वाली नोड को रेफर कर रहा है। तो आपका बेसिकली आउटपुट क्या आ गया, पहले आया 30, फिर आया 20, फिर आया 10। तो ये क्या कर रहे हैं, ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं, बट लास्ट नोड को प्रिंट नहीं कर रहे हैं। सो योर आंसर इज प्रिंट द लिंक लिस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर एक्सेप्ट द last node, that is option D. Is it clear to everyone? Quickly write yes or clear if it is clear to all of you. Yes, ma'am, it's clear.
we can proceed. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन. इसमें क्या बोला जा रहा है आपको? इसमें बोल रहे हैं कि एक लिंक लिस्ट गिवन है, फंक्शन भी गिवन है, और अगर फंक्शन में आपने पास किया हेड कॉमा 26 तो क्या होगा, राइट? सो द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स, इफ हेड डबल इक्वल्स टू नन, ये मेरी लिंक लिस्ट यहाँ पर गिवन है 11, 12, 25, 26 एंड 28. ठीक है, यहाँ पर ये हेड है और ये यहाँ पर नन है. इसके बाद जब हेड पास हुआ इसके अंदर, इफ हेड डबल इक्वल्स टू नन, तो ये तो कंडीशन फॉल्स है क्योंकि हेड में नन नहीं है, हेड में एक पूरी लिंक लिस्ट है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आया p इज इक्वल टू हेड, तो p यहां से शुरू हुआ. अब p के नेक्स्ट में जब तक नन नहीं आ जाता एक लूप चलना है, दैट मीन्स लूप यहां तक चलना है. और करना क्या है लूप के अंदर? आपको की वैल्यू को डेटा के साथ कंपेयर करना है. डेटा में पास हुआ है आपका 26, तो 11 कंपेयर होगा 26 के साथ, बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? इफ कंडीशन फॉल्स, p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट, p यहां आ गया. सिमिलरली 12 और 26 दे आर नॉट इक्वल, सो p विल कम ओवर हियर. Similarly 25 and 26 they are not equal, so p will be incremented over here. Now 26 will match the data, that is 26. In this case what you have to do, you have to print p. अब p क्या होता है? बेसिकली ये जो 26 है ये क्या है? ये एक नोड है जिसमें एक डेटा पार्ट होगा, एक नेक्स्ट पार्ट होगा, और p क्या कर रहा है? इस पूरे नोड का रेफरेंस स्टोर करके रख रहा है. अगर ये नोड सपोज करो 2500 मेमोरी एड्रेस पे होगी तो p की वैल्यू 2500 होगी. तो जब आप p को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा? एड्रेस ऑफ द नोड 26. अगर इसकी जगह मैंने लिख दिया होता p डॉट की को प्रिंट करो तो क्या आंसर आता? 26. अगर मैंने लिख दिया होता p डॉट नेक्स्ट को प्रिंट करो, अगर इस डेटा को मैं की मान रही हूं तो p डॉट की हो गया 26, p डॉट नेक्स्ट क्या हो गया? 28 वाली नोड का एड्रेस, तो एड्रेस ऑफ 28 ये प्रिंट हो जाता. और अगर मैंने लिख दिया होता p डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा तो क्या प्रिंट होता? p के नेक्स्ट में है 28 वाली नोड, उसका डेटा, या उसको भी हम की बोलेंगे डॉट की, तो वो हो जाता है 28. बट इस केस में क्या बोला गया है? प्रिंट करना है p को, सो द आंसर इज ऑप्शन बी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear? Everyone please reply. संदीप, आपका जो लास्ट क्वेश्चन को लेके डाउट था कि आपको रिपीट करना है, तो वी विल एड्रेस एट द एंड ऑफ द क्लास बिकॉज मैम ऑलरेडी स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, so we will clear your doubt at the end of the class. For right now ma'am, this question is clear to everyone, we can proceed. Okay, so for this one what is the answer? Can I know the answer from someone? Students please reply, what is the answer of this question flashed on the screen? A, B, C or D? Quickly reply. Those who already solved the sheet, please reply. All of these, 1, 2, 3, ma'am. Kindly write in the chat box, please. Please don't unmute your mic. जब तक हम लोग आपसे कुछ बोलते नहीं है, जब तक आपका नाम अनाउंस नहीं होता. Okay, so the 3 or 4 students replied yet, and they all are saying option number D. Which is exactly correct. All the 3 codes are correct. The question is, which of the following code successfully traverses to the circular linked list assuming PTR is equal to head? Assume कर रहे हैं आप, यहाँ पर एक PTR pointer है और आप ये तीनों कोड चला के देखना चाहते हो. So the first code is, while PTR dot next not equals to head, print the key and increment PTR. So right now इसके next में head नहीं है, so it will print 10 and then increment itself over here. Again 20 के next में head value नहीं है तो 20 भी print होगा और PTR इंक्रीमेंट होके आगे आ जाएगा. अब 30 के नेक्स्ट में, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, हेड वाली नोड का एड्रेस है, सो PTR डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड यहाँ हो जाएगा फॉल्स. आप लूप के बाहर आ जाओगे. लूप के बाहर भी एक स्टेटमेंट है जो कह रहा है जहां पर भी PTR है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो. तो यहाँ पर इस केस में 10, 20, 30 तीनों करेक्ट है, राइट. तो अब हमारा ऑप्शन बी तो गलत हो गया. अब हम देख लेते हैं कोड स्निपेट 2. कोड स्निपेट 2 क्या बोल रहा है कि PTR हेड से शुरू हो रहा है. सबसे पहले तो आप क्या करो, PTR डॉट की को ही प्रिंट कर दो. तो हमने 10 प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद उसको इंक्रीमेंट कर दो. हमने इंक्रीमेंट करके
यहां ले आया। उसके बाद लूप लगा हुआ है while ptr not equal to head, प्रिंट करो की और इंक्रीमेंट करो, तो 20 प्रिंट हो गया और इंक्रीमेंट होके 30 पे आ गया। इधर पर 30 प्रिंट हो गया और इंक्रीमेंट होके ये कहाँ आएगा, वापस से यहां पर। अब ये बोलेगा पीटीआर नॉट इक्वल टू हेड, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, लूप के हम आ गए बाहर, बट तीनों चीजें प्रिंट हो गई, ट्रैवर्सल हो गया, तो सेकंड कोड भी सही है। अब थर्ड वाला कोड देख लेते हैं हम लोग। थर्ड वाले कोड में क्या बोला जा रहा है, पीटीआर आपका फर्स्ट नोड पर ही है, एक इन्फिनाइट लूप लगा हुआ है, दिस इज एन इन्फिनाइट लूप। इस लूप के अंदर आप बोल रहे हो पीटीआर की को प्रिंट कर दो, तो 10 प्रिंट हो गया। अब पीटीआर को इंक्रीमेंट कर दो, तो पीटीआर इधर आ गया। इसके बाद बोला गया क्या पीटीआर हेड के बराबर हो गया, अभी नहीं हुआ है, सो अगेन द लूप विल एग्जीक्यूट, अगेन वैल्यू विल बी प्रिंटेड एंड इट विल बी इंक्रीमेंटेड ओवर हियर। अगेन क्या पीटीआर हेड के बराबर हो गया, अभी नहीं हुआ, तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई और इसके बाद ये इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट होके ये यहां आ गया। अब ये हेड के बराबर हो गया है, तो आपने क्या बोला, ब्रेक आउट ऑफ द लूप। So in this case also successful traversal. So option D is your correct answer. This is basically traversal of a circular linked list के 3 variations of the code. Right? Now we'll move to the next one. Now this question, has anybody solved it? What is the answer for this question? Students kindly reply in the chat box only, A, B, C or D. How many of you solved this question? Please reply. Okay, so first Sandeep is saying B, Anu is saying B, okay. Rest of the students, please reply fast. Vishal, we shared the sheet maybe because आपके पास पहुंची नहीं है, but it's okay. जिन लोगों के पास sheet पहुंच चुकी है वो reply कर दीजिए. So ma'am, students are saying B is the answer. You can proceed with the solution. Okay, so what does the following code do for a singly linked list having the following keys? So there is this function and you are having some pointers over here, you can say references. Current is equal to head, so I'm going to make this C as the current is equal to head. temp1, temp2, P और Q सब none है अभी, तो जब तक current में none नहीं आ जाता, while current is not equal to none, you have to perform this loop. इस if loop के अंदर ये है एक if, इस while loop के अंदर एक if condition है, if के साथ उसका else part है और last statement है current node को आपको बस current node dot next पर लेके जाना है, right? So we are going to do this. If condition में क्या लिखा है, if current dot key modulus 2 double equal to 1, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर, अगर 2 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर मिलता है यानी आपकी वैल्यू जो है ऑड है, तो आप ये काम करो, अदरवाइज अगर आपकी वैल्यू इवन है तो आप एल्स पार्ट में चले जाओ। इसका मतलब सिंपली यही है। तो सबसे पहले क्या होगा, 1 के लिए चलेगा, 1 इज ऑड, तो आप इफ के अंदर गए, इफ के अंदर जब आप गए आपने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या देखा, अगेन एक इफ कंडीशन लगी हुई है, इफ P इज नन, फिलहाल P, Q, T1, T2 सब नन है, तो P नन है, आपने बोला P इज इक्वल टू करंट एंड temp1 इज इक्वल टू करंट, तो सिंपली आपका क्या हुआ, P यहां पर आ गया और T1 भी यहां आ गया, temp1 को मैं T1 लिख रही हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब इसके इफ के अंदर ये इतना एग्जीक्यूट हो गया तो ये एल्स पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पूरा इफ भी एग्जीक्यूट हो गया, ये एल्स भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली आप कहां जाओगे, इस स्टेटमेंट पे। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो यहां से सी अपना हटके नेक्स्ट यहां पर आ गया, राइट। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, अगेन द लूप विल चेक क्या वैल्यू इवन है कि ऑड, इस केस में वैल्यू आपकी इवन है, आप एल्स पार्ट में गए, एल्स पार्ट में पहली लाइन लिखी हुई है इफ Q इज नन, तो अगर Q आपका नन है तो Q हमारा अभी इनिशियली नन ही है, तो Q इज इक्वल टू करंट एंड temp2 इज ऑल्सो इक्वल टू करंट, तो आपने क्या बोल दिया, Q आप यहां पर पॉइंट करा दो और temp2 भी यहां पर ही पॉइंट करा दो, ये दोनों पॉइंट हो गए। इसके बाद हम डायरेक्टली किस लाइन पे आ जाएंगे, ये लास्ट इंक्रीमेंट वाली लाइन पे, जहां पर करंट इंक्रीमेंट हो गया बाय 1, तो करंट आपका आ गया यहां पर। अब इसके बाद फिर से वैल्यू चेक होगी, दिस वैल्यू इज अगेन ऑड, सो यू विल गो टू दिस पार्ट। क्या P अब नन है, P अब नन नहीं है, P में अभी ये वैल्यू आ चुकी है, राइट। तो अब हम इसके एल्स पार्ट में जाएंगे, P के नेक्स्ट में डाल दो करंट नोड को, तो P अभी हमारा ये है,
P के नेक्स्ट में 2 है, लेकिन इसके नेक्स्ट में अब हमें क्या डालना है, करंट को, तो ये वाली लिंक यहां से टूट जाएगी। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, P इज इक्वल टू P का नेक्स्ट, तो ये जो P आपका ये पॉइंटर है इसको यहां से हटा के इसके नेक्स्ट पे भेज दीजिए, जो क्या है 3 है। अभी हाल हमने चेंज किया है इसको, इतना काम हो गया। तो जो लिंक हमारी ये टूट गई इसको मैं यहां से इरेज कर दे रही हूँ, तो थोड़ा नीट दिखेगा, और P भी हमारा यहां पहुंच गया। इसके बाद क्या हुआ, जब ये इफ कंडीशन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, अगेन हम इस लास्ट लाइन पे आए, करंट वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो करंट वैल्यू हमारी कहां पहुंच गई है, करंट वैल्यू आ गई है यहां पर। अब अगेन वैल्यू इवन है, इवन के केस में आप यहां जाओगे, इफ Q इज नन, Q नन नहीं है, Q हमारा यहां रेफर कर रहा है सेकेंड नोड को, तो हम इसके एल्स पार्ट में आ गए। एल्स पार्ट में क्या बोला गया, Q के नेक्स्ट में डाल दीजिए करंट को। अभी Q है 2, Q के नेक्स्ट में है 3, लेकिन अब ये हमें बोल रहे हैं कि अब Q के नेक्स्ट में आप क्या डाल दो, करंट को, तो Q के नेक्स्ट में आपको डालना है इस नोड को। दैट मीन्स ये लिंक आपकी टूट जाएगी। जब ये लिंक टूट जाएगी, इसके बाद आप बोल रहे हो Q इज इक्वल टू Q का नेक्स्ट, तो इस Q को भी यहां से इंक्रीमेंट करके आप कहां लेके आ गए, इधर पर लेके आ गए। तो जो लिंक टूट गई है उसको आई एम गोइंग टू इरेज। सो दिस हैपेंड। आफ्टर दिस अगेन यू विल इंक्रीमेंट करंट बाय 1, तो करंट आपका कहां आ गया, करंट आ गया लास्ट नोड पे। अब फिर से वैल्यू चेक हुई, इज दिस वैल्यू इवन और ऑड, दिस इज अगेन ऑड, अगेन इट विल गो इन द इफ कंडीशन, P नन नहीं है, इट विल अगेन गो इन द एल्स पार्ट, P डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट। अब P कहां है आपका, P है आपका यहां पर, P के नेक्स्ट में है 4, लेकिन अब P के नेक्स्ट में आप क्या डाल दीजिए, इसको डाल दीजिए, तो ये लिंक आपकी टूट गई। और उसके बाद क्या बोला है, P इज इक्वल टू P का नेक्स्ट, तो P यहां से हट के कहां आ गया, इधर आ गया, राइट। इसके बाद जो लिंक टूट गई है वी आर गोइंग टू इरेज इट, सो दिस इज द कंडीशन। इसके बाद क्या हुआ, अगेन यू विल कम ओवर हियर at the last statement. Once you have executed everything, you will come to the last statement. Current increment होगा। अब इस केस में जब करंट इंक्रीमेंट होगा, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी नन, क्योंकि नेक्स्ट में अभी ये वैल्यू है हमारी नन। इस केस में आपका वाइल लूप एग्जीक्यूट होना बंद कर जाएगा। वाइल लूप के आप बाहर आओगे, यहाँ पे ये 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। पहला कह रहा है कि आप पहले तो Q के नेक्स्ट में नन डाल दो। अब Q कहाँ है आपका, Q आपका है यहाँ पर, इसके नेक्स्ट में नन डाल दो। दैट मीन्स ये लिंक तोड़ दो, जब इसके नेक्स्ट में नन डालना है तो ये लिंक टूट जाएगी। ये लिंक हटा के इसके नेक्स्ट में आपने डाल दिया नन। अब उसने बोला P डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू temp2। P कहाँ है आपका, P डॉट नेक्स्ट, P है आपका ये वाला नोड, ये P नोड है, इसके नेक्स्ट में अभी क्या है, इसके नेक्स्ट में है नन वैल्यू, लेकिन अब ये बोल रहे हैं इसके नेक्स्ट में आप डाल दीजिए temp2, तो ये नन वैल्यू यहां से हम हटाएंगे और इसके नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, temp2, तो यहां से एक लिंक जाएगी और आपके temp2 को रेफर करने लगेगी। ये काम हो गया। अब पूछा गया है अब लिंक लिस्ट की हालत क्या है, व्हाट इज द लिंक लिस्ट आफ्टर ऑल ऑफ दिस। सो हेड में आपका क्या है, 1 है, 1 के नेक्स्ट में क्या है, 3 है, यहां पे आ जाओ। 3 के नेक्स्ट में क्या है, 5, 5 के नेक्स्ट में क्या है, 2, 2 के नेक्स्ट में क्या है, 2 के नेक्स्ट में आप यहां से जाओगे, 2 के नेक्स्ट में है 4, तो यहां 4 के आगे क्या है, नन। सो योर लिंक लिस्ट resultant is 1 3 5 2 4, which is option B. Is it clear to everyone? Is it clear? Please write yes or no. Quickly write yes or no. If you have any kind of doubt, please write in the chat box. Yes, ma'am, it's clear. Okay, another very simple question. How much time will it take to retrieve kth element from the end in a given linear linked list of n nodes? तो end से हमें kth element पर जाना है। तो अगर मेरी लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5 और इसमें n वैल्यू क्या है, n वैल्यू है 5, आपके पास 5 नोड्स हैं। लेट्स से k वैल्यू है 1, ठीक है, k वैल्यू 1 है, दैट मीन्स एंड से फर्स्ट नोड पे हमें प्रिंट करना है, दैट मीन्स यू हैव टू प्रिंट
5। इसके केस में आपका 5 आंसर आना चाहिए। ये करने के लिए आपको एक लूप लगाना पड़ेगा जो स्टार्टिंग से शुरू होके एंड तक जाएगा। अब मान लो k की वैल्यू होती 2, तो आपको बस 4 प्रिंट करना होता, तो एक कम पर रुकना होता। लेकिन अगर k की वैल्यू क्या होती, 5 ही होती, तो लास्ट से 5वीं नोड कौन सी होती, फर्स्ट वाली होती। तो ये क्या हो जाता, एक बार में ही प्रिंट हो जाता, लूप नहीं चलता। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाता कि बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, तो वो क्या होती, जब लूप सिर्फ एक बार भी नहीं चलता, तो वो हो जाती ऑर्डर ऑफ 1। लेकिन जब आपको नहीं मेंशन है तो आप क्या बताओगे, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दैट मीन्स सबसे ज्यादा टाइम किस केस में लगता है, जब k की वैल्यू आपको 1 दे दी जाएगी तो आपको 5 प्रिंट कराना है, तो आपका लूप यहां से शुरू होके पूरे एंड तक जाएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग O ऑफ n। दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका आंसर है। सो वील मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस क्वेश्चन, consider the following statements about a doubly linked list having at least 3 nodes। अब at least 3 nodes जब बोला जाता है तो हम 3 से ज्यादा ही nodes लेके चलेंगे। Let's say we draw 5 nodes over here। अब बोला जा रहा है फॉरवर्ड लिंकेज ऑफ वन ऑफ द नोड, जिसको आप फॉल्टी नोड बोलोगे, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू द लास्ट। तो अगर मैंने फॉरवर्ड मान लिया है लेट्स से 3 को, तो 3 का जो फॉरवर्ड लिंकेज है वो लास्ट वाली नोड को रेफर कर रहा है। फॉरवर्ड लिंकेज ऑफ द लास्ट इज पॉइंटिंग टू द फॉल्टी, तो फॉरवर्ड लिंकेज ऑफ द लास्ट इज पॉइंटिंग ओवर हियर। फॉरवर्ड लिंकेज ऑफ द फर्स्ट इज पॉइंटिंग टू द फॉल्टी, तो 1 का भी फॉरवर्ड लिंकेज यहां पॉइंट कर रहा होगा और यहां पर होगा आपका हेड। अब क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है, ये ध्यान रहे ये डबली लिंक लिस्ट है, तो हमें बाकी कनेक्शंस भी बनाने पड़ेंगे। 1 का फॉरवर्ड हो गया, 2 का फॉरवर्ड इधर ही होगा, 3 का फॉरवर्ड हो गया, 4 का फॉरवर्ड इधर होगा। 5 का आइडियली फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए था, वहां पे नन होना चाहिए था, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो हमने बना दिया। रिवर्स लिंक्स बनाएंगे, 5 का रिवर्स लिंक 4 की तरफ, 4 का रिवर्स लिंक 3 की तरफ, 3 का रिवर्स लिंक 2 की तरफ और 2 का रिवर्स लिंक 1 की तरफ। ये बन गया। अब ये डायग्राम बनाते समय ही आपको समझ में आया कि फॉरवर्ड लिंकेजेस में तो प्रॉब्लम है, बट बैकवर्ड लिंक एकदम प्रॉपर बनी हुई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अज्यूमिंग P इज रेफरिंग टू द फॉल्टी नोड, दैट मीन्स ये आपका P है। आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिंट एवरी एलिमेंट इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में प्रिंट करो बट सारे प्रिंट करो और ये कोड को कंप्लीट करो। तो अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो और आपने डायग्राम बनाया सही से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी भी हाल में अगर आप फॉरवर्ड जाओगे ना लिंक से इंक्रीमेंट करके, मतलब 1 से शुरू करके 3, 3 से 5, 5 से 3, और आप एक इन्फिनाइट लूप में फंस जाओगे। 3 से शुरू करोगे फॉरवर्ड जाओगे तो 3, 5, 5, 3 इन्फिनाइट फंस जाओगे। लेकिन किसी तरह अगर आप 5 से शुरू करो और इधर से पीछे की तरफ जाओ, तो यहां पर सारी बैकवर्ड लिंक्स इंटैक्ट हैं। तो पहला केस तो हमने ये आइडेंटिफाई किया। तो ये नेक्स्ट वाले जो ऑप्शंस हैं इनको तो आप एलिमिनेट ही कर सकते हो कि फॉरवर्ड लिंकेज से तो मेरा काम नहीं होना है, बैकवर्ड लिंक से होना है। बैकवर्ड लिंक से तब हो पाएगा जब आप 5 से शुरू करो। 5 से शुरू करने के लिए आपको 5 तक जाना पड़ेगा। 5 तक जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कोड पे आ जाओ। यहां बोला है कोई क्यू पॉइंटर है उससे लूप शुरू हो रहा है, तो क्यू पॉइंटर को या तो आप p डॉट नेक्स्ट से इनिशियलाइज करो या p डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट से। अगर मैं q इज इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट लेती हूँ, दैट मीन्स p के नेक्स्ट में क्या है, 3 के नेक्स्ट में है 5, तो q यहां से शुरू होगा और प्रिंट करेगा अपनी की। और इंक्रीमेंट कैसे होगा, इंक्रीमेंट नहीं है डिक्रीमेंट होगा, पीछे की तरफ जाएगा, तो मतलब ये सारे प्रिंट कर ले जाएगा। अगर मैं इसको q इज इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट करती हूँ, तो q p है हमारा 3 के नेक्स्ट में है 5 के नेक्स्ट में है फिर से 3, तो यहाँ q इज इक्वल टू 3 वाला नोड हो जाएगा। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear? Please write yes or no. Yes, ma'am, it's clear. Student, I also shared one feedback form to you. Please kindly spare some time and please fill that particular form. That's very important. Ma'am, one of the students are saying to repeat the previous question, please. Okay, so let's just see this once again. See, there is a scenario given.
about a doubly linked list and it is saying कि at least 3 nodes है, so you just draw roughly 5 nodes. Okay, right? The first statement is saying कि एक कोई नोड है faulty node जो अपने नेक्स्ट को पॉइंट करने की बजाय लास्ट नोड को पॉइंट कर रही है. तो लेट्स से मैंने 3 को फॉल्टी नोड मान लिया, तो इसका जो नेक्स्ट लिंक है, हर डबली लिंक लिस्ट में एक नेक्स्ट लिंक होता है, एक प्रीवियस लिंक होता है. इसका नेक्स्ट लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है. लास्ट नोड का जो लिंक है फॉरवर्ड लिंकेज वो फॉल्टी नोड को पॉइंट कर रहा है. ये यहां लिखा हुआ है सेकंड स्टेटमेंट में. थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि फॉरवर्ड लिंक ऑफ द फर्स्ट नोड यानी 1 का इज रेफरिंग टू द फॉल्टी नोड. ये बना लिया हमने. इसके बाद और कुछ नहीं दिया है सिनेरियो में. तो बेसिकली अब हमें बची हुई लिंक लिस्ट तो कंप्लीट करनी पड़ेगी. तो जब हमने कंप्लीट करी, 1 के नेक्स्ट में 3 है, 2 के नेक्स्ट में भी 3 होगा, 3 के नेक्स्ट में 5, 4 के नेक्स्ट में 5. अब प्रीवियस लिंक्स एस्टैब्लिश करो. 5 के नेक्स्ट में यहाँ पर एक्चुअली नन होना चाहिए डबली लिंक लिस्ट कायदे से, बट यहाँ पर गिवन है तो हमने उसको नन नहीं माना है, वो इधर रेफर कर रहा है. बट 5 के प्रीवियस में उसके लास्ट वाला एलिमेंट होगा, 4 के प्रीवियस में उसके पीछे वाला, 3 के प्रीवियस में 2 और 2 के प्रीवियस में 1 होगा. जब ये होगा तो आप जब ये डायग्राम बनाओगे, बेसिकली द पॉइंट इज एमसीक्यू को आप पूरे टाइम हर चीज एग्जीक्यूट नहीं करते. व्हाट यू डू इज यू ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एज फास्ट एज पॉसिबल. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये बोल रहा है कि अगर P फॉल्टी नोड है, दिस इज P, और आपको सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है. अब अगर आपको कभी भी लिंक लिस्ट में सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो आपको ट्रैवर्स करना है और आपके लिंक सही होने चाहिए. इस डायग्राम में फॉरवर्ड लिंक्स तो सारे खराब हो रखे हैं, लेकिन जो बैकवर्ड लिंक्स हैं वो सब सही हैं. तो अगर आपको सबको एलिमेंट को प्रिंट करना है तो आपको बैकवर्ड ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा. तो इस लिहाज से जब भी इंक्रीमेंट होगा लूप वाले वेरिएबल का, वो क्यू डॉट नेक्स्ट से इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो हमेशा क्यू डॉट प्रीवियस से डिक्रीमेंट होगा. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका हो गया गलत. जब आपने लूप में देखा कि क्यू चल रहा है, पी से नहीं चला रहे हो आप, क्यू से लूप चला रहे हो, तो क्यू को आइडियली कहां से शुरू होना चाहिए? क्यू को शुरू होना चाहिए यहां से, तभी तो वो पीछे जाके 5, 4, 3, 2 और 1 को प्रिंट कर पाएगा. अगर आप 3 से लूप शुरू करोगे तो 3 से प्रिंट करने में 3, 2, 1 ही प्रिंट होगा, राइट? क्योंकि आपके पास केवल 2 ही ब्लैंक्स हैं भरने के लिए. तो इस केस में आपको 5 तक पहुंचना पड़ेगा. 5 तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता है? अगर आप बोल दो P का नेक्स्ट यानी 3 का नेक्स्ट, 3 के फॉरवर्ड में क्या है 5, तो Q को आप इनिशियलाइज कर दो P के नेक्स्ट में और उसको फिर डिक्रीमेंट करते जाओ. तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी. अभी क्लियर है? Now it's clear? Yes, ma'am, it's clear. Okay. Next question, a very simple one again, a theoretical one. इसमें अगर आपको कोड्स याद है, एल्गोज याद है, तो आप कॉम्प्लेक्सिटी भी आराम से निकाल लोगे. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन एट द बिगिनिंग. तो एरेज के केस में एट द बिगिनिंग अगर हम देखते हैं, लेट्स से यहाँ पे कोई वैल्यूज होती हैं 10, 20, 30, 40, और अगर आपको एट द इंसर्शन एट द बिगिनिंग करना है तो ये जितने एलिमेंट्स हैं इनको आपको राइट में शिफ्ट करना रहता है. तो जब भी इंसर्शन एट बिगिनिंग ऑफ एरे की बात की जाती है, इफ देयर आर n एलिमेंट्स, सो यू हैव टू शिफ्ट n एलिमेंट्स टू द राइट. Dikshant, mute your mic. Okay, ma'am, you can continue now. Okay, so if you have n elements in the array, all the n elements have to be shifted towards the right. तो इसमें आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n. सिंपल लिंक लिस्ट में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1. डबली लिंक लिस्ट में भी इट इज ऑर्डर ऑफ 1. सर्कुलर लिंक लिस्ट में आप इंसर्शन करते हो और उसके बाद आप लास्ट तक ट्रैवर्स करते हो, बिकॉज द लास्ट नोड इज रेफरिंग टू द फर्स्ट नोड. तो आपको ट्रैवर्सल का लूप लगाना पड़ता है, यहाँ ऑर्डर ऑफ n होती है. डबली सर्कुलर में मोस्टली सारे इंसर्शन डिलीशन एट द एंड एंड एट द बिगिनिंग ऑर्डर ऑफ 1 में ही होते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ 1. सो ऑर्डर ऑफ n एरेज है और सर्कुलर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. एरेज एंड सर्कुलर इज ग्रेटर देन ऑल द अदर 3. सो दिस वाज अ थ्योरेटिकल वन. We'll move to the next one. What does the code do for a singly linked list of n nodes? You have been given only one pointer. तो n nodes नहीं, पर हम यहाँ पर at least 4-5 nodes बना लेते हैं. ये मैंने बना ली 4 nodes और इसके next में है none. This is going to be head.
सो अब बोला गया है आपको एक पॉइंटर गिवन है नॉट टेल पॉइंटर, जो क्या रेफर कर रहा है, जो एड्रेस होल्ड कर रहा है एक नोड का विच इज नॉट द लास्ट नोड। तो लेट्स से अगर मुझे इसको मानना है तो मैंने मान लिया इसको नॉट टेल, ठीक है। अब ये कोड चलेगा, ये कोड चला, करंट नोड इज इक्वल टू नॉट टेल का नेक्स्ट, नॉट टेल के नेक्स्ट में कौन है 3 है, तो ये हो गया मेरा करंट नोड। अब बोला गया नॉट टेल की की इज इक्वल टू करंट नोड की की, तो नॉट टेल की की में क्या आ गया 3, नॉट टेल का नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट नोड का नेक्स्ट, ये वाली लिंक तोड़ो, नॉट टेल का नेक्स्ट से ये लिंक तोड़ो और इसको रेफर करा दो करंट नोड के नेक्स्ट से, ये भी हमने करा दिया। एंड नाउ करंट नोड इज इक्वल टू नन, दैट मीन्स करंट नोड इज नाउ इक्वल टू नन, दैट मीन्स दिस इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड एनी मोर। अब लिंक लिस्ट में क्या बचा, तो हेड जो था वो फर्स्ट को रेफर कर रहा है, फर्स्ट एक नोड को रेफर कर रहा है जो 3 है, 3 एक नोड को रेफर कर रहा है जो 4 है, राइट टिल हियर, एंड दिस इज नन। देयर इज ऑल्सो अ नोड 3 ओवर हियर जो ऐसे रेफर कर रहा होगा, ये वाली नोड मैंने ड्रॉ करी है, ये इधर पे ये रेफर कर रही होगी, बट ये मेरी लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं रही, सो वी विल नॉट कंसिडर इट, राइट। सो नाउ दे आर आस्किंग विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सो बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पर कोई लूप नहीं चला, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी तो आने से रही, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत हो गया। अब डिलीट क्या हुआ, की डिलीट हुई, डिलीट्स द की, डिलीट्स द की, किसकी की डिलीट हुई, बेसिकली की कौन सी डिलीट हुई, 2 वाली डिलीट हुई, जो किसकी की थी, नॉट टेल की थी, तो डिलीट द की ऑफ नॉट टेल इन ऑर्डर ऑफ 1, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Is this clear? Right, yes or no? Okay, ma'am, can we take a pause here for the attendance? Yes, ma'am. Okay, students, so quickly write your roll numbers in the chat box. You have 1 minute to write. Quickly write your roll number in the chat box. Also, a feedback form is shared to you. Please spare few minutes and share your honest feedback. It hardly takes few minutes. So everyone, all of you, please fill the feedback form as earliest as possible. So ma'am, attendance is done. You can proceed with the solution to this question. Okay. So there is a linked list given having these nodes, and you have to run this code and tell what happens after this code has been executed. So this function is using list. List is basically head. आप इसको list बोल लो या head बोल लो, it is one and the same thing. So the first condition, if not list or not list dot next, that means अगर list में value आपकी none है, right? None क्या होता है, मतलब अगर list खाली होती तो list में value होती none. नन की बुलियन वैल्यू होती है फॉल्स, नॉट लगा दिया आपने उसके पीछे तो नॉट फॉल्स हो जाता है आपका ट्रू, इस केस में आप रिटर्न कर जाओ। लेकिन हमारा ऐसा केस है नहीं, हमारी लिस्ट में नन नहीं है तो उसकी बुलियन वैल्यू फॉल्स नहीं ट्रू होगी, और नॉट ट्रू को आप क्या कर दोगे, फॉल्स हो जाएगा, तो ये इफ कंडीशन कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी पहली चीज। तो इससे हम आगे बढ़ गए। इससे आगे बढ़ने के बाद हमने क्या बोला, P is equal to list and Q is equal to list dot next. तो P ये हो गया और Q हमारा ये हो गया। While Q मतलब जब तक Q में नन नहीं आ जाता एक लूप चलेगा। लूप में क्या हो रहा है, एक टेम्प लिया गया है विच इज इक्वल टू P का की, वो है 10। P के की में आपने डाला है Q का की -10, Q का की है 20, -10 करोगे यहाँ 10 ही आ जाएगा, और Q के की में 10 + 10 डालना है, यानी 10 + 10 20। यहाँ पर कुछ इंटरचेंज हुआ लेकिन वैल्यूज सेम रही। P इज इक्वल टू P का नेक्स्ट, तो P आपका इंक्रीमेंट होके आ गया यहाँ पर। अब चेक हुआ क्या P और Q बराबर हैं, हाँ बराबर हैं, तो Q को आपने आगे बढ़ा दिया P डॉट नेक्स्ट के। अब आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे Q इज इक्वल टू Q डॉट नेक्स्ट, बट यहाँ कंफ्यूज करने के लिए Q इज इक्वल टू P डॉट नेक्स्ट लिखा गया है, तो Q बढ़ गया आपका आगे।
एल्स कंडीशन इवेल्युएट नहीं होगी, आप वापस से लूप में चले गए। जब आप वापस से लूप में गए तो अब आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, P यहाँ है और Q यहाँ है। अगेन क्या होगा, टेम्प में 20 जाएगा, इसकी वैल्यू फिर से अपडेट होगी 30 माइनस 10, ये हो जाएगी 20, और यहाँ पे क्या होगी 20 प्लस 10, तो यहाँ पर हो जाएगी 30। तो बेसिकली हमने ऑब्जर्व किया, फिर से P यहाँ आएगा, P और Q बराबर होंगे और Q आपका यहाँ आएगा। सो वी हैव ऑब्जर्व दैट नथिंग इज चेंजिंग इन द लिंक लिस्ट एक्सेप्ट वो प्लस माइनस 10 करने के बजाय वही वैल्यूज को मैनेज कर ले रहा है। एक बार बॉर्डर केस भी चेक कर लेते हैं। लास्ट केस में जब आपका Q यहाँ होगा और P यहाँ होगा, इस केस में 60 की जगह 60 आया होगा और 70 की जगह 70 आ चुका होगा। P इंक्रीमेंट होके यहाँ गया होगा, P और Q बराबर भी आ जाएंगे। जब P और Q बराबर आ जाएंगे तो ये बोलेगा Q इज इक्वल टू P डॉट नेक्स्ट। तो Q इंक्रीमेंट होके P डॉट नेक्स्ट में क्या है आपका, नन है, तो Q हो जाएगा आपका नन। ये होने के बाद लूप में वापस जाएगा। वाइल कंडीशन में वाइल Q इज नॉट इक्वल टू नन, मतलब वाइल Q का मतलब क्या है, Q की वैल्यू हो गई है नन, नन का मतलब होता है फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप के आप बाहर आ गए। तो बेसिकली जब आप लूप के बाहर आए आपकी लिस्ट में कुछ चेंज नहीं हुआ, दिस वाज जस्ट अ डमी कोड डूइंग नथिंग, बट बिकॉज इट इज अ लॉन्ग कोड एंड बिकॉज इट विल कम इन द एग्जाम, यू विल थिंक कि यहाँ पे गलती होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसमें मुझे टाइम लगेगा, मैं ये नहीं करूंगी, बट यू शुड डू इट, यू शुड अटेम्प्ट इट, बिकॉज लिंक लिस्ट क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड दे लुक लॉन्ग in size, they look lengthier in size, but they are actually very easy. So the correct answer is option C. So I hope all the questions are solved, and if you have any doubts you can ask right now. That's all from my side, ma'am. Please write your doubt in the chat box, please.